Hello and welcome to mathematics class for standard 7th, chapter 5, lines and angles, part 1. What you're going to learn from this video. Students, here is a short recap from your previous class with certain basic geometrical aspects. The first one is point. What is a point? A point is nothing but a name of a location. Then what is a line? A line is perfectly straight and extends forever in both the direction. Students, here I am representing only the definitions with a little explanation. I'm definitely going to explain you this with the figures in the next slide. The next topic, that is the next point, is ray. What is a ray? A ray is a part of a line that starts at one point and then extends from that point only forever, but only in one direction. That is called a ray. Then what is an intersecting lines? Students, the intersecting lines are two or more lines that have one and only one common point in them. And that common point where all the intersecting lines meet is called the point of intersection. This figure I'm going to show you in the upcoming slides. Then what are complementary angles? Students, when two angles, when two measure of angles, we add it. After addition, you get the sum as 90. That two angles are then together called as complementary angle pairs. They are always in a pair. वो हमेशा जोड़ी में होते हैं. That means 1 and 2 दो pairs होते हैं. ठीक है, दो एंगल्स होते हैं, 1 pair होता है. फाइन. सो जब ये दो ऐड करेंगे ना आप, और अगर वो 90 डिग्री आता है आपका आंसर, तब वो दो एंगल्स, चाहे उनका मेजरमेंट कुछ भी हो, वो दोनों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाएगा. दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन द फर्दर स्लाइड. What are supplementary angles? Exactly like complementary, supplementary is there. Only the difference is what you know. For complementary angles, the two angles add up to 90. But for supplementary angles, the two angles add up to 180. यानी कोई भी दो एंगल मेजर अगर आप ऐड करो और वो एडिशन उनका टोटल 180 डिग्री आता है, तब वो दोनों को, यानी एक पैर को, वो जोड़ी ऑफ एंगल को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द फिगर्स नाउ. Now this is a picture of a line. You could see a line could be having only positives also, it could have all the negatives also, depends. कुछ भी हो सकता है. Lines extend जब होती है, so it collects all the numbers whether they are positive, that is positive numbers start from 0 if they are whole numbers, starts from 1 if they are natural numbers, and suppose if not 0 but they go to the left side having all the negative integers, then the whole line is collection of all the integers that are negative as well as positive. Right? अब line किसे कहते हैं? We have having three statements here, I mean three words here. One is line, another is line segment, and one is ray. मैं आपको ये तीनों explain करती हूँ. Just a recap. Line क्या होता है? जो दोनों तरफ से extend किया जाए. यानी अगर मैं यहाँ ब्लू डॉट्स, ये ब्लू वाले एरो से अगर मैं एक्सटेंड करूं, तो 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 एंड सो ऑन आता चला जाएगा. और अगर मैं यहाँ से एक्सटेंड करूं ना रेड वाले एरो से, तो यहाँ से -5 से आगे -6, -7, -8 एंड सो ऑन. यानी आप इस नंबर लाइन को दोनों तरफ से एक्सटेंड कर रहे हो. सो ये नंबर लाइन है. सपोज नंबर ना भी हो, तो बच्चों ये जो लाइन है आप उसको दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हो. एक्सटेंड करने का मतलब होता है बढ़ाना. अगर आप दोनों डायरेक्शन में उसे बढ़ा सको, तब वो लाइन कहलाती है. अब इस लाइन के ऊपर कुछ चीजें होती हैं. सपोज ये एक ब्लैक डॉट है. एक्चुअली ये डॉट नहीं है, ये है पॉइंट. क्या है? वेरी गुड, पॉइंट. ऐसे ही मैंने और एक जगह अपने मन से पॉइंट बना लिया, एनी डिजिट को. यहाँ पर भी एक पॉइंट है.
अब हम इन दोनों पॉइंट्स को डिफरेंस कैसे करें? भाई मैं कहूं मैंने उस पॉइंट में, उस पॉइंट की बात करती हूँ, मैं उस पॉइंट, किस पॉइंट की? यहाँ पर तो 2 पॉइंट है, इसीलिए हम पॉइंट्स को नेम करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट पॉइंट एज A एंड सेकेंड पॉइंट एज H. सो A के पास जो पॉइंट है, हम उस लोकेशन का नेम तो कर दिया, उस लोकेशन का हमारे पास नंबर भी है. यानी A पॉइंट जो है उसका नंबर क्या है? -4. इसको कहते हैं पॉइंट विथ लोकेशन एंड नेम. यानी आपके पास वो पॉइंट का नेम भी है और वो किस लोकेशन पर पॉइंट है हमें वो भी पता है. वी आर एग्जैक्टली रीचिंग द पॉइंट. यू अंडरस्टूड? Similarly, what is the point as number? That is 2. Now suppose I have one more point, but I don't know what is the number. So let's write now in a statement wise. Point A जो है वो क्या है? -4 है. यानी -4 पर point A है. ये लोकेशन कभी कभी हमें आंसर द फॉलोइंग में ऐसा पूछ सकते हैं, जैसे पॉइंट A के ऊपर जो नंबर है, सपोज हमने यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए, A, B, C, D, चारों में अलग अलग नंबर दिए. तो अगर आपको पॉइंट A इस तरीके से पिक्चर में बताया हो तो डेफिनेटली आप एक करेक्ट पॉइंट ही उठाओगे. दैट इज A को हम लोगों ने 0 भी कहा होगा, A को हमने 3 भी कहा होगा, A को टीचर्स ने -1 भी लिखा है और A को -4 भी लिखा है. आप पिक्चर को देख के एग्जैक्टली पता कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट A है ये किस नंबर पे है. दैट इज -4. उसी तरह पॉइंट H जो है वो है नंबर 2 पर. तो अब बताइए पॉइंट M किस पर होगा? वेरी गुड, it will be on -1. Understood? So ये थे certain things about a line. और लाइन के ऊपर पॉइंट्स मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही थी. अब हम लोग एक्चुअली लाइन देख लेते हैं. देखो मैंने यहाँ पर कोई नंबर्स नहीं दिए, राइट? दिस इज अ सर्टन लाइन जो मैं ये बता सकती हूँ कि यहाँ पर कोई भी नंबर्स आ सकते हैं. आप यहाँ पर 100 दे सकते हो, 101, 102, 103, तब यहाँ पर -100 नहीं आएगा डेफिनेटली. अगर यहाँ 100 है ना तो यहाँ पर 99, 98, 97, 96 एंड सो ऑन. यानी जरूरी नहीं है कि आपको मैंने ये जो रेड वाला पार्ट दिया ये नेगेटिव ही होगा, हमें बस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फॉलो करने हैं. ओके, जैसे यहाँ पर 0 दिया हुआ है तो डेफिनेटली 0 के इस तरफ यानी लेफ्ट की साइड में हमेशा नेगेटिव नंबर्स यानी नेगेटिव इंटीजर्स स्टार्ट हो जाते हैं. बट अगर सपोज ये पूरी ही लाइन ब्लू दी होती तो यू कुड हैव स्टार्ट, अगर आपको दिया होता नंबर, राइट ना. सो द लाइन, हमारा मेन पॉइंट क्या है एक्सप्लेनेशन का यहाँ पर पता है, दैट अ लाइन कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ द साइड्स. ओके, देन इट इज कॉल्ड डेफिनेटली अ लाइन. अब सपोज मैं इसको नेम कर देती हूँ. सपोज यहाँ पर मैं इस लाइन को मुझे नेम देना है. आई गिव दिस नेम ईयर A. हम आगे नेम दे देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं M. इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने X और इस पॉइंट को नाम दे दिया Y और यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया P. अब मुझे इस लाइन का नाम बताना है कि मैं किस लाइन की बात करती हूँ. आप कहीं से भी उठाओगे ना ये लाइन ही है, यानी XM लाइन कहलाएगी. क्यों पता है? क्योंकि हमने इसको कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं बताया है. यू मे राइट द नेम ऑफ द लाइन फ्रॉम एनी लेटर, यानी XY भी लाइन कहलाएगी, PM भी लाइन कहलाएगी, क्योंकि P के इस तरफ हमने कोई फुल स्टॉप नहीं दिया. इट गोज ऑन एंड ऑन. ओके, सो सर्टनली जो मोस्टली फॉलो किया जाता है वो क्या होता है पता है, कि किसी भी लाइन के एंड पॉइंट्स के ऊपर जो लेटर्स दिए रहते हैं ना, हम लाइन को उसी लेटर्स से ज्यादा कर मोस्टली हम वही चीज फॉलो करते हैं. इसलिए इस लाइन का नाम होगा AM. ओके, आप AM भी कह सकते हो, MA भी कह सकते हो. यू कैन स्पीक इन बोथ द वे. A पहले बोलो, M बाद में बोलो, M पहले बोलो, A बाद में बोलो. यू कैन स्पीक इन बोथ द वे. क्यों पता है? क्योंकि ये जो लाइन है ये बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड की जा सकती है. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. सी, मैंने यहां पर से एक सेगमेंट लिया है, यानी इस लाइन का कटिंग पार्ट ले लिया. आप मैच कर सकते हैं इस फिगर को इस फिगर से, कि ये यहां से यहां पर मैंने इतना सेक्शन कट किया है, दिख रहा है आपको, ये और ये. तो यहां पर मैं इनके अब लेटर्स देती हूँ, X है, Y है, तो ये सेगमेंट का नाम भी हम एंड पॉइंट से ही देंगे. सेगमेंट XY क्यों कहा गया? अब हमने नेम भी कर दिया, बट इसे सेगमेंट क्यों कहा, लाइन क्यों नहीं कहा? करेक्ट, लाइन के लिए एरोज का ड्रॉ होना बहुत जरूरी है. अगर यहाँ पर एरोज नहीं बनाए गए हैं तो डेफिनेटली ये जो सेगमेंट है ना ये एक्सटेंड नहीं हो सकता.
ये जो x है, ये x के इस तरफ लेफ्ट साइड ना एक्सटेंड हो सकता है और ना ये पॉइंट y अपने राइट साइड से एक्सटेंड हो सकता है। यानी ये जो पीस ऑफ व्हाट डू कैन से लाइन, ये जो पीस ऑफ लाइन है ये इतना के इतना ही रह जाएगा और इसीलिए इस पीस को कह दिया है सेगमेंट। आपको समझ में आया व्हाट इज सेगमेंट? इट इज नथिंग बट अ कटेड पीस, एक कट किया हुआ पीस है ऑफ अ लाइन। ओके, सो दिस इज सेगमेंट एक्स वाई। नाउ सपोज मैं अगर इस लाइन को वन साइड से कट करती, कोई भी एक तरफ से, लाइक दिस या लाइक दिस, अगर मैं इसको यहां से कट करती हूँ तो मुझे यहाँ का एक हिस्सा मिलेगा ये वाला, और इधर का एक हिस्सा मिलेगा ये वाला। अब ये दोनों में क्या फर्क है ना? इससे हमें इस तरफ देखो, अगर मैं सेगमेंट को कंपेयर करूँ ना, तो सेगमेंट के पास ना यहाँ एरो है लेफ्ट साइड पॉइंट एक्स पर और ना यहाँ एरो है पॉइंट वाई पर, इसीलिए ये पीस सेगमेंट कहलाया, क्योंकि ये दोनों में से किसी भी तरफ बढ़ नहीं सकता, एक्सटेंड नहीं हो सकता। बट आप इसको देखिए, रेड और ब्लू को मैंने एक तरफ से कट किया ना उसे, तो यहाँ पर उसे एरो दिख रहा है, यानी ये जो मैंने पीस कट किया है ये रुकेगा नहीं, ये इस रेड वाले डायरेक्शन में बढ़ता रहेगा, दैट मीन्स टुवर्ड योर लेफ्ट साइड। और अगर मैं इस ब्लू की बात करूं तो शायद ये यहाँ से, डेफिनेटली शायद नहीं, ये यहाँ से डेफिनेटली नहीं बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई एरो नहीं है, बट सी राइट साइड में एरो है और ये यहाँ से बढ़ेगा। सो ये भी अगर हम नेम कर दें तो ये है पॉइंट P और ये है पॉइंट A, मैंने इतना हिस्सा कट किया है और यहाँ पर P, तो ये रे PA कहलाया। क्यों रे PA कहा, AP नहीं? अब इसे रे क्यों कहा? रे उस सेगमेंट को कहते हैं या अगर उस कटिंग पार्ट को कहते हैं जो वन डायरेक्शन में बढ़ सकती है। लाइन जो होती है वो दोनों डायरेक्शन में बढ़ सकती है, बट रे जो होती है वो ओनली वन डायरेक्शन में बढ़ सकती है, इसीलिए उसके वन साइड का एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ एरो होता है, और इसीलिए जहां पे एंड पॉइंट होता है हम वहां से रे का नेमिंग स्टार्ट करते हैं, यानी P, और जहां पे एरो होता है वो लेटर हम बाद में लिखते हैं यानी A। यानी ये हम बता सकते हैं कि जो PA है वो एक्सटेंड हो रही है A की तरफ से। आपको समझ में आया? उसी तरह यहां पर भी हमारे पास पॉइंट्स है P और यहां पर Y है। अब अगर हमने P और Y लिया है और एरो दिखा दिया है तो आप ही बताइए ये एक्सटेंड किस तरफ से हो रही है? करेक्ट, जहां एरो है वहां से एक्सटेंड हो रही है, यानी वो एक्सटेंड हो रही है Y से। और कहां से एक्सटेंड नहीं होगी? वो ऑन द स्पॉट फुल स्टॉप की तरह ही रह जाएगा, दैट इज पॉइंट P। तो इस रे का नाम होगा PY, क्योंकि जहां से एक्सटेंड हो रही है वो लेटर बाद में लिखा जाता है, सो इसका नाम है रे PY। I hope students you have followed very well a line that these are the points which actually make us reach the proper location of a point. What is line? Which can be extended from both the direction. The segment cannot be extended either from left or right, that is from any direction it is cannot be extended, but a ray can be extended to one direction. Okay students, we'll move on to what are intersecting lines. Now suppose I have drawn one line like this and another line is crossing it and going, है ना? So एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी जाती है, तो यानी डेफिनेटली अगर एक के ऊपर दूसरी ड्रॉ करेंगे तो कहीं ना कहीं दे आर गोइंग टू मीट एट अ पॉइंट। जैसे कि ये जो लाइन है और ये लाइन है वो इस पॉइंट पर मीट होता है ना? इनका मीटिंग पॉइंट ये है, बाकी सब जगह तो नहीं है, अकेली है लाइन, यहाँ पे भी अकेली है, दोनों एक पॉइंट पर आकर एक दूसरे को क्रॉस करते हुए निकल जाते हैं। तो वो जो मीटिंग पॉइंट है ना, इस पॉइंट को कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो कौन सी दो लाइंस हैं हमारे पास? एक ये है और एक ये है, जो मीट हो रही है ना, इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये तो लाइंस को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। जरूरी नहीं है कि ओनली टू हो, देयर कैन बी मेनी लाइंस, 1 2 3 4 एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ। यू माइट हैव सीन द अशोका चक्र ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, and if you're going to observe that Ashoka Chakra national flags what is there, the Ashoka Chakra is having one intersecting point in it.
and you will see that how many lines are there. You might be knowing how many lines, right? Because the logic is there. Inside the Ashoka Chakra, how many spokes are there, right? All the spokes are coming and meeting at the center, right? So this central point is actually the intersecting point, and all the spokes, which are actually the lines, right? Segments. So these are the intersecting lines. Now suppose I give you one more example like this. जरूरी नहीं है देख उनको जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो एकदम एक्यूरेट बीच में बराबर लाइंस को हाफ हाफ करता ही हो एंड सो फॉर, नो, वो एनी हाउ भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं. देखिए यहाँ पर एनी हाउ एक स्मॉल लाइन है, एक थोड़ी लेंदी लाइन है, बड़ी वाली है, और दे एनी पॉइंट छोटा बड़ा कुछ देख नहीं रहे हैं, बस दे आर कमिंग एंड क्रॉसिंग ईच अदर. यहाँ पर भी एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है सी, तो ये भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ, और ये दोनों लाइंस हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन. दे कुड बी एनी हाउ, जरूरी नहीं है कि उनका प्रोपोर्शन वो लोग मेंटेन करें. फाइन. नाउ दिस इज ऑल्सो वन लाइन, सी, एंड वन लाइन इज कमिंग एंड जस्ट टचिंग इट, दैट्स ऑल. सो क्या ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे. दे आर कमिंग एंड क्रॉसिंग एट दिस पॉइंट. तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये क्या होगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट. और ये लाइन क्या होगी? Intersecting line. I hope student you have followed what are intersecting lines. Now let us come to angles. एक छोटा सा recap है, आप जानते ही हैं, but छोटा सा recap है. Angles are of how many types? आप तो जानते ही हैं, acute angles and obtuse angle. आपको ये भी पता है that acute angles are maybe equal or maybe less than 90. या तो 90 होगा, equal होगा, इक्वल टू 90 होगा, वी मे कंसिडर कि अक्यूट है यानी 90 कंसिडर कर लेते हैं. बट अगर आप मोस्टली देखा जाए ना तो 89 पर हम स्टॉप करते हैं, राइट? क्योंकि अगर एग्जैक्ट 90 होगा ना, सो वी ओके, लेट अस टॉक अबाउट ऑब्ट्यूज फर्स्ट. ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? इट विल बी इक्वल और मोर देन 90, तो वो ऑब्ट्यूज हो गया. अगेन मैं आपको बोलती हूँ, अगर इक्वल होगा, इफ इट इज इक्वल, ओके, तो वो क्या कहलाएगा? नाउ अगर यहाँ पर मैं लेस देन 90 कहती हूँ, दैट इज इक्वल और लेस देन 90. acute angles are always less than 90. Okay, so from 1 to 89, okay, not equal, 1 to 89. Okay, okay students, so less than 90, that means from 1 to 89, and more than 90 means from 91 to 179 डिग्री. ये जो होंगे ना, ये इनके सर्टन, जैसे 1 to 89 हो तो डेफिनेटली अक्यूट एंगल्स है, और 91 to 179 हो तो ऑब्ट्यूज एंगल है. सो हमारा 90 रह जाता है. सी 89 से 91, एग्जैक्ट 90 हो तो क्या होता है? इट इज कॉल्ड एज राइट एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, अब अगर हम लोग इसका प्रोटेक्टर देखें स्टूडेंट्स, तो ये हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. 0 है, 10, 20, जहाँ से हम 0 स्टार्ट करते हैं वहाँ का हम 170, 160 ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं देखते बेटा. जब भी हम लोग ये प्रोटेक्टर को देखेंगे ना, हमेशा याद रखना जहाँ से आप बिगिन करते हो वो 0 वाला ही, वो 0 का ही देखना है. तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and not 90 till 89. All the angles under this section is coming for acute angles. Now look at this obtuse now. More than, that is from 91 to 180. That means अब हम लोग ये नहीं देखेंगे कि यहाँ का 0 है, यहाँ से 0 नहीं देखेंगे हम लोग. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम नियर 91, क्योंकि हम 91 से स्टार्ट करते हैं ऑब्ट्यूज के लिए, राइट? एंड फ्रॉम ऑन एंड सो फॉर, यहाँ से यहाँ तक फाइन ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं. ऐसा नहीं है कि वी स्टार्ट फ्रॉम 91, ऐसा नहीं है, बट मोर देन, ओके, मोर देन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 91. ये जो सेक्शन है ना ऑब्ट्यूज एंगल का, यानी 0 to 91 क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज कहलाएगा. 0 to 92 क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा. इट बिगिंस विद 0, लेकिन उसका सेक्शन काफी बड़ा है. 91 भी डिग्री होगा तो ऑब्ट्यूज में होगा, 92 भी होगा तो ऑब्ट्यूज में होगा, 102 होगा तो भी ऑब्ट्यूज में होगा. ओके, इट इज नॉट लाइक दैट कि आपको 91 से ही स्टार्ट करना है. नो, नॉट एट ऑल. ओके, सो अब आते हैं एग्जैक्टली 90 एग्जैक्टली होना, यू स्टार्ट वेदर फ्रॉम दिस साइड or whether you start from this 0. Okay, always you are going to reach at this point either from left or either from right. Exact 90 is actually your right angle.
Understood, student? Now we'll move on to the complementary angles. Student, what are complementary angles? मैंने आपको बताया ना, जब हम दो एंगल्स को प्लस करते हैं और उनका टोटल 90 डिग्री हो ना, तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक प्रोटेक्टर लिया है और उस पर हम एक एंगल बनाएंगे। एक आर्म है, हम जब वन लाइन बनाते हैं ना किसी भी एंगल की, उस वन लाइन को हम कहते हैं आर्म, ARM। देखिए मैंने वन आर्म बनाया है और दूसरा आर्म यहां से बनाया है। अब हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और 20 पर खत्म हो रहा है ना। सो इस एंगल का मेजरमेंट हुआ 20 डिग्री। अब मैं दूसरा आर्म यहां से ही स्टार्ट करूंगी, द फ्रॉम सेम, ओके, एंड माय सेकेंड एंगल का फर्स्ट आर्म है ये, और उसका सेकेंड आर्म मैंने इसलिए कलर अलग चॉइस की है, ब्लू कलर, ताकि आप दोनों एंगल्स को डिफरेंस कर सके। अभी मैंने एक रेड एंगल बनाया था, अब एक ब्लू एंगल बना रही हूँ। ये कितना होगा पता है? इस पूरे 90 में सिर्फ 20 कम है इस एंगल के पास, ब्लू वाले के पास, है ना। यानी ये 20 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारे लिए 0 हुआ। सो 1 2 3 4 5 6 7 70 होगा ना, तो दिस एंगल इज 70 डिग्री। एक्चुअली यहां से स्टार्ट होता तो पूरा यहां से लेके यहां तक 90 होता, ये ब्लू वाला एंगल, बट इसने कितना छोड़ दिया है? ये रेड वाला एंगल पोर्शन छोड़ दिया है ना। ये दोनों एंगल्स को अगर आप ध्यान से देखें तो इनका एक आर्म, जो रेड एंगल का एक आर्म है रेड वाला, और जो ब्लू एंगल का ये जो ब्लू आर्म है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, है ना। तो अगर ये इस तरीके से ओवरलैप करके कंबाइन हो जाते हैं तो देखो क्या बन जाता है, 20 प्लस 70 विल गिव यू टोटल 90। अब हमारी जो ओवरलैप्ड आर्म है, सपोज हम इनको नजरअंदाज कर देते हैं, वी इग्नोर देम, सो व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट द 0 right and this 90. So when you combine these both the angles, what you get? You get a complete 90 degree angle. This means this is a complementary angle. Let's have one another example. Let's have one more arm of red angle, and this time I have taken a little bigger than 20. So यहाँ पर 0 है and I have stopped at this point. यानी अगर ये 0 से स्टार्ट है तो 10 20 30 40 50 60 और 70 यानी कि एग्जैक्ट सेंटर में, यानी ये 65 होगा। सो मेरा ये वाला जो एंगल है वो है 65। अब मैं और एक एंगल बना लेती हूँ। पता है ना आपको, इसके ऊपर मुझे 90 करने के लिए कितना चाहिए? अब मुझे 60 के ऊपर 90 करने के लिए मुझे इतना कमी है, इतना, क्योंकि रेड वाला एंगल यहाँ 65 पे स्टॉप हो गया, 90 तक जाना था। कितना जाना था? देखिए अगर हम लोग इतना सेक्शन काउंट करें ना, तो अगर ये 0 है तो ये 10, ये 20 और ये इतना 5, दैट इज 5। सो ये जो एंगल होगा वो होगा 25। अब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, यानी एंगल 65 और एंगल 25 जब कंबाइन करेंगे तो सेंट्रल का जो ओवरलैप्ड आर्म्स है वो इग्नोरेंस में जाता है। यानी हम क्या काउंट करते हैं? ये एंगल और ये एंगल के दोनों आर्म्स, 0 से स्टार्ट 90 पर खत्म, टोटल 90 हुआ ना। यानी इन शॉर्ट इन दोनों एंगल्स को जब आप ऐड करो ना तो उनका 90 होना ही चाहिए, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। अब कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री कहलाया? देखिए 20 में 70 ऐड करो तो 90, तो 20 जो है वो 70 एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री हुआ और 70 जो है वो 20 का कॉम्प्लीमेंट्री हुआ। अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल अगर हम जैसे यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि 65 में 25 ऐड कर रहे हैं, राइट। नाउ सपोज हम 65 के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? तो 65 के लिए हमें 25 चाहिए ताकि वो 90 बन सके। तो ये जो 25 है ना, ये 65 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। उसी तरह अगर हम 25 से सोचें कि 25 में कितना एंगल डालना पड़ेगा कि वो 90 हो जाए, तो 65 आंसर आएगा। तो जो 65 है वो 25 का कॉम्प्लीमेंट्री कहलाए। यानी ये जो दो एंगल्स होते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। अंडरस्टूड? और क्यों कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं? क्योंकि दोनों को एक एक दूसरे की जरूरत पड़ती है 90 करने के लिए, राइट। इसलिए वो दोनों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सी, यहाँ पर एक एंगल लिया है, रेड वाले का एक आर्म आया और दूसरा, यानी ये जो एंगल है इसका हम लोग अभी मेजरमेंट लिखेंगे। और एक सेकंड एंगल मैं बना रही हूँ ब्लू वाला, देखिए यहाँ से बनाया और सेकंड यहाँ पर।
तो आप देखें तो क्या ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे? चलो चेक करते हैं। ये जो आर्म है ये 0 से स्टार्ट हुआ है एंड इट हैज एंडेड ऑन 40 एंड 50 के सेंट्रल वाली लाइन पर, यानी 45 है। सो ये एंगल जो है वो है 45, राइट? ओके, और ये जो एंगल है, हम यहां से अगर 0 काउंट करें तो 0 है, ये 10 होगा, ये 20 होगा और ये 5, ये 25 है। सो हम इन दोनों को देखते हैं, ये 45 और ऊपर वाला 25। अब हम इन दोनों को अगर ऐड करें तो क्या ये 90 के इक्वल होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। 45 प्लस 25 गिव्स यू 80, करेक्ट है ना? 45 प्लस 25 गिव्स यू 80 बट नॉट 90। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट ओवरलैपिंग। सी, इनका एक आर्म जो अभी तक मेरे दो एग्जाम्पल्स अर्लियर में ओवरलैप हो रहा था ना, वो नहीं हो रहा। दैट मीन्स इतना पोर्शन जो है ना वो मिसिंग है 90 के लिए। अंडरस्टूड? तो इतना पोर्शन 4 5 6 7, सॉरी, 45 प्लस 25 विल नॉट गिव यू 80 बट इट विल गिव यू 70, क्योंकि यहां पर मैं देख रही हूं आई एम गेटिंग 20 का डिफरेंस है, यानी डेफिनेटली ये 70 होगा। तो 70 प्लस 20 यानी 20 डिग्री मिसिंग है 90 के लिए। तो कहां से 45 और 25 क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे? नहीं, they are not going to be called as complementary angle. So this is not a complementary angle, yes, but these two both are the complementary angles. I hope student you understood that when you add any two angles they give, okay, the question tells you to add up, and after adding if you are getting 90 then only they are called complementary, but if you are not getting 90 then they are not complementary like this. Now we move on to the another topic, that is सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आ गया है तो सप्लीमेंट्री समझना बहुत आसान है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री में हम दो एंगल्स को प्लस करके 90 लाते हैं, है ना? यानी दो एंगल को प्लस करके अगर 90 आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। उसी तरह सप्लीमेंट्री में दो एंगल को प्लस करने पर 180 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? करेक्ट, 180। यानी अभी भी दो ही एंगल लेंगे, दो एंगल को प्लस भी करेंगे, प्लस करने के बाद कितना आंसर आना चाहिए? 180। चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा एक प्रोटेक्टर, हमने एक रेड आर्म लिया है और ये बन गया सेकेंड आर्म और बन गया कंप्लीट एंगल। देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से, और एंड हो रहा है 70 पर, यानी ये पूरा जो एंगल है वो कितना है? 70 डिग्री। अब अगर हम लोग इसी से कंटिन्यू करें ना स्टूडेंट्स, तो 180 यहां पे खत्म होता है। यानी अगर मुझे दूसरा इसका 70 का, दैट मीन्स 70 का कॉम्प्लीमेंट बनाना है ना, तो इस एंगल के ऊपर वाला एक आर्म बनाना होगा, है ना? सी, आर्म मेकिंग बन गया, और सेकेंड वाला यहां पर होगा 180 पर। तो ये कितना पोर्शन है 70 में? 70 को 180 बनाने के लिए ये कितना एंगल होगा? आप मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? अब मैं आपको यहाँ पर फिगर से बताती हूँ। 0 से यहाँ पर गए, सी अंदर वाली लाइन देख लेते हैं। 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 एंड 110। यानी ये जो एंगल है ना, ये है 110। अब इन दोनों को हम प्लस करते हैं। 70 प्लस 110 will give you the angle as 180. Right? Now we'll move on to the next one. यानी ये दो एंगल को तो प्लस करके हमें 180 मिल गया। अब जिस तरीके से ये एंगल इस एंगल का, जैसे हमने अर्लियर स्लाइड में देखा था ना, एक दूसरे के वो लोग कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। तो ये क्या कहलाएंगे? वेरी गुड, सप्लीमेंट्स। ओके, हाँ, नाम से ही रिलेटेड इन दोनों का रिलेशन है। 70 is called the supplement of 110 and 110 is called the supplement of 70। दोनों एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट्स कहलाएंगे। अगर हम ऐसा कहें ना कि भाई 50 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 180 से आप 50 को माइनस कर देना, कितना बचा? 130। तो 130 होगा वो 50 का सप्लीमेंट्री, और 50 जो होगा ना वो 130 का सप्लीमेंट्री। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। दिस यहाँ पर एक एंगल बना रहे हैं, एक आर्म बन गया रेड वाले एंगल का और सेकेंड आर्म। देखिए ये जो पूरा एंगल है ना, 0 से स्टार्ट हो रहा है एंड यू कैन सी 120 पर ये आगे 120। तो ये जो एंगल है ये 120 का है। अब मैं जो दूसरा बना रही हूँ वो कुछ ऐसे बना रही हूँ। एक आर्म है 50 पर
और एक आर्म है 180 पर। तो ये कितना लेस है, 50 कम हो गया ना, इतना 50 कम हो गया, नहीं डेफिनेटली ये 130 होगा। अगर आप चाहें तो यहाँ, अगर यहाँ से आप काउंटिंग स्टार्ट करें ना, तो यहाँ का जीरो देखना, 10 20 30 40 80 100 10 20 सी 130 है ना, इस तरफ से यहाँ से नीचे की लाइन देखी जाती है, और अगर आप यहाँ से काउंट करो तो ऊपर की लाइन देखी जाती है, यानी जहाँ से जीरो होता है वहां से। ओके, जीरो इज एक्चुअली दिस लाइन। तो ये हमने ब्लू वाले का कंसिडर कर लिया, कितना है 130। अब हम इन दोनों को प्लस करते हैं, प्लस करने पर 250 आता है, नॉट 180। तो क्या हम इन दोनों एंगल्स को, यानी क्या 120 को और 130 को सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे? नो, क्योंकि दोनों एंगल्स को प्लस करने पर आपके पास 180 ही आना चाहिए, देन ओनली दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो यस, हमारा ये वाला जो एग्जाम्पल है वो एक सप्लीमेंट्री एंगल का है, अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। पेयर का मतलब होता है जोड़ी, but this is not a supplementary pair. Understood? Okay students, thank you for watching the video. I hope you have understood some basic concepts which were actually some recapitulations of your last class, and you have enjoyed the video as well. You have understood everything nicely. Okay student, the complementary and supplementary angles especially, right students, and some of the aspects were the recaps. We will meet soon with another part. Till then, have a nice day ahead. Goodbye.